that you guys can have an idea design proper IoT system, and also to check if you guys have any problems. I'm also going to share solution. And I'm also going to share the solution of a task which I have given in workshop. A few of you have sincerely tried solving the task, but I will give complete solution in today's workshop. So first of all, let me tell you what were the previous problem statements like. Okay, this was the previous year's problem statement, that is of Udyam 22, in which I did participate as a participant. So what we had to do, we had to basically prepare a health monitoring system. In that, we had to track the vital parameters of any patient, like his blood pressure, his body temperature, and other factors. And we should inform the nearest hospital regarding any drastic change in this body vitals. For example, if temperature falls below a certain level, if heartbeat drops below a certain level or it becomes too high, or if like the oxygen level in the body drops below a certain level. So that messages along with the GPS location of the patient should be sent to the nearby hospital. This was the task, and there were various points based on how what are the add-ons or what are the features, extra features that we implemented. So can anyone try to guess what will be the components required? I have discussed all the sensors, all the what I want to say, all the add-ons like the GS modules, the GSM module, the GPS module. So what sensors or what modules can you think will be required in this case? It's a very easy question. So anyone please, which sensors, which modules you will require? Because the first step of attempting any problem statement is to first to read the problem statement, understand what the examiner wants from you, and then the next step comes that you have to identify what are your requirements. So please, anyone, please, you could just try to guess. So why I'm not getting any reply? Am I audible actually? Yes, Priya, you're audible. Okay, so someone should I call out name then? Okay, Aryansh. Hello, Aryansh. Are you there? हेलो भैया. हाँ तो आर्यश बताओ, मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है कौन से सेंसर कौन से मॉड्यूल चाहिए होंगे अगर हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस बनाना है तो? मेडिकल से भी मतलब लाइक मेन आर्डिनो तो लाइक पता ही चलिए लाइक जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन फिर तो लाइक मेडिकल सेंसर्स में चले जाएगा लाइक बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस और अच्छा, आर्डिनो और क्या बताया तुमने? आर्डिनो और लाइक और भैया ज्यादा आइडिया लाइक मुझे इतना है नहीं, लाइक मैं अभी यहाँ पे पीएस और वो सब देख आया हूँ. देखो, जो जो ट्रैक कर रहे हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड सेंसर चाहिए। जैसे अगर तुमको ब्लड ऑक्सीजन लेवल ट्रैक करना है तो उसका एक सेंसर चाहिए। तुमको हार्ट बीट ट्रैक करना है तो तुमको उसका एक सेंसर चाहिए जो रिस्ट पे लगा सके तुम लोग, और वो पल्स फील करता रहे, उससे हार्ट बीट ट्रैक हो जाए। अगर तुमको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ट्रैक करना है तो तुमको एक बॉडी टेम्परेचर सेंसर चाहिए। अगर तुमको और कुछ ट्रैक करना है, फॉर एग्जांपल, तो मैं मेरा सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ कि मैंने क्या सबमिट किया था। के लिए कोई मतलब
सेंसर्स पर्टिकुलरली जैसे एमपीएक्स सेंसर यूज कर सकते हैं। कौन सा? एक एमपीएक्स सेंसर है तो एमपीएक्स कुछ 4। क्या क्या मॉनिटर करता है वो सेंसर, क्या रीड करता है? भैया वो मेनली तो वो प्रेशर ही वो करता है मेजर। तो उसको हम लोग इस तरह से सिमुलेट करेंगे कि वो ब्लड प्रेशर भी कुछ कर सके रेड एलईडी लगा के, हाँ हाँ हाँ, तो उसका हाँ तो वोल्टेज सही, के अकॉर्डिंग। सही है। ब्लड प्रेशर ट्रैक करने के लिए कोई एक सेंसर डेडिकेटेड होना चाहिए, सही बात है। अच्छा। तो दिख रहा है मेरा सबको? तो ये कंफर्म करो। यस भैया। हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है। देखो, तो मैंने ये कंपोनेंट्स यूज़ किए थे। बॉडी टेम्परेचर काउंट करने के लिए मैंने एक टेम्परेचर सेंसर यूज़। ब्लड प्रेशर के लिए मैंने ये देखो MPX4115, तो मैंने वही ब्लड प्रेशर सेंसर नहीं मिला, तो बस एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, क्योंकि हम वैसे भी सिमुलेशन में कर रहे हैं, तो मैंने एक प्रेशर सेंसर यूज किया सीधा, और ऐसा दिखाई कि वही ब्लड प्रेशर मेरा कैलकुलेट कर रहा है। एक हार्ट बीट सेंसर था, मैंने नेट पे हार्ट बीट सेंसर की लाइब्रेरी मुझे मिल गई, तो मैंने वो हार्ट बीट सेंसर यूज। डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या चाहिए था हमको? डेटा ट्रांसमिशन, एक तो एक जीपीएस सेंसर चाहिए होगा। ये जीपीएस मॉड्यूल है, एक जीपीएस मॉड्यूल चाहिए होगा, जो जीपीएस मॉड्यूल मुझे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूसली सेंड करता रहेगा। जो 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 उसका लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट सेंड करेगा। वो कोऑर्डिनेट्स जाएंगे मेरे आर्डिनो में, और वो आर्डिनो के द्वारा फिर ये मैंने ट्रांसमिशन पिन में ये जीएसएम और एक जीएसएम मॉड्यूल यूज़ किया था, और एक ये मॉड्यूल यूज़ किया था, जी एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया था। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल क्यों यूज़ किया था? क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स था उस टास्क के लिए, कि अगर तुम एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाते हो, तो जो जो ये इंपॉर्टेंट वाइटल्स है तुम्हारे, अगर वो ट्रैक करके तुम मोबाइल पे शो कर रहे हो, या कुछ और टास्क तुम मोबाइल पे परफॉर्म करने जा रहे हो, जैसे तुम स्टेप काउंटर इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये वाइटल्स के डेटा के बेसिस पे। तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो मोबाइल में डेटा सेंड करने के लिए मैंने एक ब्लूटूथ सेंसर यूज़ किया था, ताकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन या विदाउट वाईफाई कनेक्टिविटी भी मोबाइल को कंटिन्यूसली जा सके। और मैंने जीएसएम सेंसर एक डेडिकेटेड और सेपरेटली यूज़ किया था। मैंने यही ब्लूटूथ मॉड्यूल से मैंने मोबाइल पे डेटा सेंड कर सकता था, और मोबाइल से मैं हॉस्पिटल में सेंड कर सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक अलग से जीएसएम मॉड्यूल यूज़ किया, ताकि अगर मोबाइल कनेक्टेड नहीं है तो फिर भी ये मेरा हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस इंडिविजुअली अपना, अगर इमरजेंसी केस में कुछ इमरजेंसी होती है, या वाइटल ड्रॉप हो जाता है, या ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली हॉस्पिटल को मैसेज भेज सके। तो ये जीएसएम मॉड्यूल के कुछ कमांड्स होते हैं, CTDT कमांड्स होते हैं, और वो मैसेज सेंड के लिए करने के लिए वो एक कोड फॉर्मेट में होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ कोड होता है, एंडिंग में कुछ कोड होता है, बीच में तुम्हारा मैसेज लिखना होता है। तो वो तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे, उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो जीएसएम मॉडल था, ये सेंड करता था, तो डेटा जो ये सेंड कर रहा है, तो डेटा सेंड करने के लिए मैंने ये यूज़ किया था। इस कंपोनेंट का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं यहाँ से आप स्पॉन कर सकते हो, वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं इसको। तो ये जो डेटा सेंड करता है, वो सब डेटा वो रीड करके आपको बताता है, वर्चुअल टर्मिनल। तो ऐसा था मेरा सबमिशन पिछले ईयर का। तो इस साल भी आपको ऐसे ही लगभग कुछ इसी के अराउंड ऊपर नीचे थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको स्मार्ट सिटी रिलेटेड कोई टास्क दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा सोच रहे लोग कि अपना इस साल का उद्यम का थीम रहेगा स्मार्ट सिटी। तो उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा।
तो और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे एक उसके पिछले साल में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, गोल्ड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर बैंक, उसका पीडीएफ होगा मेरे पास। ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसमें क्या करना था आपको कि एक बैंक है और बैंक का लॉकर सिस्टम है। तो बैंक के लॉकर सिस्टम में बैंक ने रखा है बहुत सारा गोल्ड, और वो गोल्ड बैंक को एक लॉकर से दूसरे लॉकर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रेल कार टाइप सिस्टम बनाया है। तो आपको बस एक सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करना था उसके लिए, ताकि अगर गोल्ड का वेट कहीं इन जर्नी कम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियसली कहीं पे आप रिपोर्ट कर सके कि इतना वेट कम हो चुका है, इतना वेट ज़्यादा हो चुका है, या कोई कार्ट रुक गया है इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, बिटवीन बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, या जीपीएस लोकेशन उस कार्ट का रिपोर्ट करना है कि कहाँ कहाँ एनोमली हुई है कुछ, या कुछ वेट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी थी। और उसमें भी एक्स्ट्रा ऑप्शनल एड-ऑन्स थे, आप ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते। थिंगस्पीक मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, थिंगस्पीक यूज़ करके आप डेटा ग्राफिकली कुछ प्लॉट कर सकते थे, या उसके ऊपर कुछ और एनालिसिस कर सकते थे। और कोई अलार्म सिस्टम, कोई लॉकिंग सिस्टम, ताकि कोई कार्ट में अगर कुछ हो रहा है तो उसी पॉइंट पे लॉक हो जाए, या कोई अलार्म रेज करे कार्ट अगर कोई थेफ्ट हो रहा है, कुछ और हो रहा है। तो ये एक था। अ, और एक उसके पहले ईयर उद्यम 20 में एक ओपन पीएस था, इसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना, ये फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ये जो गोल्ड कार्ड वाला था वो भी। उससे पहले उद्यम 19 में उन्होंने ऐसा पीएस दिया था कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने बस आपसे डिटेल एब्स्ट्रैक्ट मांगा था, कोई सिमुलेशन, कोई प्रोटिया सिमुलेशन, कोई कोई ऑनलाइन कोई फाइल नहीं मांगी थी। बस आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में आपकी आइडिया प्रपोज करनी थी कि किस फील्ड में कोई कौन सा प्रॉब्लम आप टारगेट करना चाहते हो, उसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बनाना था। और जो जो जिसके आइडिया सिलेक्ट हो जाते थे उनको सेकंड राउंड में चांस दिया जाता था कि वो इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इस साल हम ऐसा फॉर्मेट नहीं कर रहे। इस साल हम पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देंगे, उसको आप उस पे ऊपर आपको सॉल्यूशन प्रपोज करना है, उसका प्रॉपर जजिंग क्राइटेरिया होगा, प्रॉपर डिटेल स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले ही। और उसमें जो क्वालिफाई होते हैं लोग, उनको सेकेंड राउंड में बैठने को दिया जाएगा। और सेकेंड राउंड होगा, वो होगा ओपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसमें आप अपने मन से जो आपके आसपास प्रॉब्लम्स है और जो स्मार्ट सिटी से रिलेट कर पाते हैं प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ IoT ऑफ कोर्स। तो उसमें आप आर्डिनो यूज़ कर सकते हो, नोड MCU यूज़ कर सकते हो, ESP32 यूज़ कर सकते हो। आपको माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, आपको सेंसर मॉड्यूल, ये सब की आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। बस आपका जो सॉल्यूशन होगा वो IoT एनेबल्ड होना चाहिए। अच्छा, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ऑल राइट इफ आई टॉक इन हिंदी? Yes, sir. तो ठीक है, चलो। तो बस IoT से रिलेटेड होना चाहिए अब आपका सॉल्यूशन। हेलो। सेकंड राउंड में हम लोग मतलब करेंगे तो लाइक वो हम लोग को फिजिकली करना है कि लाइक उसको भी सिमुलेशन करना है? पहला राउंड तो पक्का सिमुलेशन है। सेकंड राउंड में फिजिकली करने के लिए क्या है, थोड़े से लिमिटेशंस भी आपको सबको, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड हमको शायद अवेलेबल करके देना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फिजिकली करना पड़े। लेकिन फर्स्ट राउंड तक तो आप श्योर रहे कि आपको सिमुलेशन में ही करना है फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम। सेकंड राउंड में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन हो इवेंट, आपको फिजिकली करना पड़े। और उसके लिए भी अलग से मतलब मैं हेल्प कर दूंगा। और कुछ अलग नहीं है, जैसे इस बार हम क्या करते हैं, आर्डिनो में कोड रन करते हैं और वो हेक्स फाइल लिंक कॉपी करते हैं। तो उसमें वो नहीं करना होता, बस रन करने के आगे जो एक बटन होता है, राइट एरो होता है, तो वो क्लिक करना होता है। उससे वो अपने माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे कोड लोड कर देता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका सवाल का जवाब, मैं ट्राई करूँगा सेकंड राउंड एक ऑफलाइन राउंड हो, जहाँ आपको आप फिजिकली प्रोजेक्ट करें एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे। और लेकिन फिलहाल के लिए फर्स्ट राउंड के लिए तो आप मेक श्योर रहिए कि आपको सिमुलेशन पे ही करना है, चाहे आप प्रोटियस पे करें, चाहे आप ऑनलाइन वो वेबसाइट पे करें, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करें, प्रोटियस 7 यूज़ करें, प्रोटियस 8 यूज़ करें, वो कोई लिमिटेशन नहीं है। बस वो सबमिशन के टाइम आपको क्लियर आपको रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये मैंने यूज़ किया, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ किया। हाँ, तो एक और कुछ आइडियाज़ मैंने सोचे थे आपके पीएस के लिए। तो जैसे पिछले साल के भी है इसमें से कुछ, तो एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम।
तो देखो, मैंने जैसे पहले वर्कशॉप्स में बताया था आपको, आईओटी का मेजर क्या है कि आईओटी में जो कंप्यूटेशन है वो हम एक माइक्रो लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे कोई बहुत कैश रिच क्रॉप है जो इसको बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे हो गया आपका ये बेल पेपर का क्रॉप हो गया, जो कलर्ड कैप्सिकम आता है वो क्रॉप हो गया, या कोई एक्जोटिक फ्रूट का क्रॉप हो गया, जो जिनका प्रोडक्ट बहुत महंगा रहता है और उनको बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, बहुत डेलिकेट होते हैं वो क्रॉप्स। ज़रा उनको मॉइस्चर कम ज़्यादा हो गया, वाटर लेवल कम ज़्यादा हो गया, पेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो वो बहुत मतलब बड़ा लॉस होता है। तो उस फील्ड में आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट भी लगता है इस सब प्रोडक्ट्स का। तो उस केस में बहुत इजीली हो जाता है आईओटी इंटीग्रेट। तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम आप कर सकते हैं, हर क्रॉप के अराउंड आप सेंसर लगा सकते हैं, मॉइस्चर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, वाटर लेवल सेंसर। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि एक लेवल के नीचे आ गया है पानी, सेफ लेवल के नीचे, तो उस पॉइंट क्या उस टर्मिनल पे आप ये एक्चुएटर द्वारा मोटर का स्विच ओपन कर सकते हैं और वहाँ का ड्रिप खोल सकते हैं, वहाँ पानी डाल सकते हैं, वहाँ इरिगेट कर सकते हैं उस पॉइंट पे। तो ये माइक्रो इरिगेशन हो गया, इससे पानी की बचत भी होगी और आपके क्रॉप्स भी बचेंगे। या फिर आप पेस्ट ट्रैक कर सकते हैं, सेम विद इन सेम स्वीट आप ये कर सकते हैं, पेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे पीआईआर सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर से आप रात में मॉनिटर कर सकते हैं कि पेस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ। और अगर पेस्ट आ रहा है तो आप उसका काउंट कर सकते हैं, या उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पेस्ट है, कितने साइज़ का है, कितने एक्टिविटी है उसकी, उसके ऊपर फिर प्रॉपर आप पेस्ट कंट्रोल सजेस्ट कर सकते हैं। ये सब आप जो सेंसर्स आप पढ़े, जो मॉड्यूल आप पढ़े अभी तक, उस सब का यूज़ करके ये कर सकते हैं। एक तो एक स्मार्ट होम सिस्टम बना सकते हैं, जो मैंने आपको, वो तो बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही एज अ वर्कशॉप आपको क्वेश्चन दे दिया था कि रिमोटली आप होम के अप्लायंसेस कैसे कंट्रोल करेंगे। सो स्टार्टर्स के लिए तो मैंने बस एक एलईडी लाइट और एक फ़ैन का कंट्रोल दिया था आपको। उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, लेकिन वो आप और एक्शन कर सकते हैं उसमें। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, मैं ग्रुप पे आपको शेयर करता हूँ, तो उसमें गूगल असिस्टेंट भी इंटीग्रेट कर दिया था उन्होंने, ब्लिंक, गूगल असिस्टेंट और प्रोटियस, ये तीनों इंटीग्रेट करके। तो गूगल असिस्टेंट के द्वारा भी कमांड दे रहा था वो यूज़र, और उससे भी वो चेंज कर रहा था। तो उसके लिए अलग एक वॉइस का अलग मॉड्यूल रहता है, वो इंटीग्रेट किया था। तो वो ऐसे सब आप ऐसे सब सेक्टर्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और एक कॉमन प्रोजेक्ट है जो आपको दिखेगा कि एक स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम ले सकते हैं, बता सकते हैं आप इससे, किसके द्वारा। तो अगर कोई रात में अगर कोई मूवमेंट डिटेक्ट होता है तो पीआईआर सेंसर डिटेक्ट कर लेगा मूवमेंट, या इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट कर लेगा मूवमेंट, या कोई एक लेज़र बेस्ड भी होता है कि अगर वो लेज़र की लाइन कट कर रहा है कोई, एक ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, अगर कोई कट कर रहा है वो लाइन, तो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो जब वो कोई इंसान वो कट करेगा दोनों ट्रांसमीटर, वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमीटर और रिसीवर का, तो वो रे सिग्नल जाना बंद हो जाएगा उतने टाइम के लिए। तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई आ गया है रात में, इंट्रूजन हो गया है कोई, तो फिर वो अलार्म बजाएगा या ओनर को इन्फॉर्म कर देगा। इस फॉर्म में एक आईओटी सिस्टम यूज़ कर सकता है। इसमें अब सेंसर का भी रोल है, माइक्रो कंट्रोलर का भी रोल है, इंटरनेट का भी रोल है, इन तीनों चीज़ों का रोल है इसमें। एक लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं फ्यूल टैंक्स के लिए, या घर के पानी की टंकी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कि कोई लेवल के नीचे जा रहा है तो आप ओनर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इतना इतना लेवल है, या एप्लीकेशन पे आप लाइव बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज पानी बचा है, कितने लीटर्स ऑफ पानी बचा है। एक बार मार्क करने के बाद तो आपका मॉड्यूल अगर वो वाटर लेवल डिटेक्ट कर पा रहा है कि इतना वाटर है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं ओनर को कि इतना वॉल्यूम बचा है अभी। या और इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं आप, हर टैप पे एक सेंसर लगा सकते हैं कि कितना पानी बह रहा है, तो उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपका रोज़ कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है, घर में लोग कितने हैं, कितना वाटर यूज़ हो रहा है। तो वो डेटा कलेक्ट करके आप वाटर यूसेज अपना कम कैसे कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। या आप जैसे फ्यूल सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं सेम वो लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग। तो लिक्विड लेवल आप काम मॉनिटर करके कि कितना फ्यूल है, कितना बच रहा है, तो फ्यूल की चोरी हो रही है कहीं, या कहीं आपका व्हीकल ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। एक ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम, वो तो जो ये तो बहुत हद तक अभी तक यूज़ हो रहा है रियल लाइफ में भी, लेकिन पार्किंग सिस्टम होता है कि जो आईओटी के द्वारा इजीली यूज़ कर सकता है। जैसे अगर अनमैन्ड करना है कोई चीज़, तो अगर कोई कार आती है पार्किंग के गेट पे, तो ऑटोमेटिकली वो बूम बैरियर ओपन करना,
कार का नंबर प्लेट रीड करके उस नंबर पे ऑटोमेटिक एक पार्किंग टिकट जनरेट करना, वो प्रिंट करना, वो सब चीज़ें। और कार के एंड होते टाइम ऑटोमेटिकली पेमेंट कलेक्ट करना, और पेमेंट कलेक्ट होने के बाद कार को बाहर जाने देना। ऐसा ये सब चीज़ें हो सकती है। अगर कार जब कार एंटर कर रही है तब कार का पार्किंग स्पॉट खाली कहाँ है वहाँ तक नेविगेशन दिखाना। बीच में अगर रास्ते में अगर स्क्रीन्स लगाए हमने कि वो एरोज से दिखा रही है कार को कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये जाना है। कार का लोकेशन भी हमको पता रहेगा पार्किंग के अंदर की कहाँ तक गई है, तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पे हम उस कार के उस कार से रिलेटेड डायरेक्शन दिखा सकते कि उस कार का पार्किंग कहाँ है। तो वैसे तब तक डायरेक्शंस दिखा सकते हैं। ये एक सिस्टम हो सकता है आईओटी बेस्ड। और एक है एक स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो सकता है। जैसे अभी मैंने वर्कशॉप 1 में आपको दिया था, एक असाइनमेंट दिया था आपको, क्या करना था, पार्किंग लाइट बना था, लेकिन वो क्या था कि फिक्स था। एक बार आप हार्ड कोड कर दोगे वो उतने सेकंड के लिए ही चलेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे क्या होता है, अगर बहुत कम ट्रैफिक है लेकिन फिर भी अगर वो सिग्नल ज़्यादा लंबा है, जैसे 2 मिनट का सिग्नल, 3 मिनट का सिग्नल होता है, तो आपको 3 मिनट रुकना ही पड़ता है उतना टाइम, भले ही कम लोग हो। आप सिग्नल जंप भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि स्मार्टली कैसे कर सकते हैं सिग्नल मैनेज। तो कुछ जगह पे होता है कि रास्ते के नीचे सेंसर्स होते हैं और वो मेटल से हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होने के बाद उससे वो नंबर ऑफ काउंट निकालते हैं व्हीकल्स का। या आप एक कैमरा बेस्ड सिस्टम निकाल सकते हैं, कैमरा से काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन ईच 4 एंड। अगर चौराहा है तो चारों रास्तों पे कितने व्हीकल्स है, कौन से रास्ते पे कम व्हीकल्स है, कौन से रास्ते पे ज़्यादा व्हीकल्स है, तो उस हिसाब से कौन से साइड का सिग्नल आपको ज़्यादा देर तक चलाना है, कौन से साइड का सिग्नल को कम कम देर तक खोलना है, ग्रीन लाइट कितनी देर तक देनी है, रेड लाइट कितनी देर तक देनी है। ये आप एक स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे आप ये सोच सकते हो कि ट्रैफिक पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये एक आप एक सोच सकते हो। एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम सिंपल कर सकते हैं। तो आप वही हर रोज़ के प्रेशर सेंसर से आप बैरोमीटर से पता चल जाता है कि प्रेसिपिटेशन कितना होने वाला है, बैरोमीटर से, और शायद ह्यूमिडिटी लेवल से पता चल जाता है प्रेसिपिटेशन का क्या कंडीशन है, टेम्परेचर से पता चल सकता है। तो इससे आप एक डेटा लॉगर भी बना सकते हो कि कंटिन्यूसली ये सब सेंसर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, ये सब डेटा कलेक्ट करके वो क्लाउड पे स्टोर कर रहा है डेटा। ये तो चीज़ें वैसे भी अभी हो रही है इन रियल टाइम, क्योंकि ये सब डेटा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक आइडिया के तौर पे मैं ये सब डिस्कस कर रहा था। और PS2 के लिए जो अभी हॉट टॉपिक्स है वो सेकेंड PS के लिए ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज। जैसे मैंने बताया था कि ये सिग्नल, स्मार्ट सिग्नल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर हाईवेज के लिए जहाँ जहाँ मोस्टली ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक हर एक टाइम पे ऐसा नहीं होता जैसे टोल बूथ्स पे हो रहा है। जैसे फास्ट टैग से हुआ था ऑटोमेशन, ट्राई किया था उन्होंने कि ऑटोमेशन करें ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाए, क्योंकि गाड़ियों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और इंडिया जैसी कंट्री में, और 1 या 4 या 5 अटेंडेंट्स कितने गाड़ियों का वॉल्यूम मैनेज कर पाएंगे और कितनी स्पीड तक कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसमें अगर ऑटोमेशन हो जाता है आईओटी के कारण, तो वो एक फील्ड में आप दे सकते हैं, एक डिफेंस रिलेटेड में देख सकते हैं, जहाँ आप ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम कर सकते हैं ताकि लॉस ऑफ लाइफ भी कम हो जाए और एफिशिएंसी भी बढ़े। जैसे सर्विलेंस के लिए आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। जो कंसेप्ट आपने स्मार्ट होम सिक्योरिटी में यूज़ देखा था, वही कंसेप्ट आप बॉर्डर पे लगा सकते हो। एग्रीकल्चर में यूज़ आ सकता है आईओटी का, उसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ सॉल्यूशन सोच सकते हो। होम ऑटोमेशन में आप सोच सकते हो। अभी वैसे कोई प्रोडक्ट्स है मार्केट में, गूगल है, गूगल का असिस्टेंट है, अमेजोन एको है, अलेक्सा है, लेकिन इसके भी आप देख पाओगे कि बहुत से वॉइड्स अभी भी बचे हैं, या ये जो सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं ऑलरेडी मार्केट में है, वो एक या तो बहुत कॉस्टली है या एकदम जो मतलब जो बेसिक सी चीज़ें वो अच्छे से कवर नहीं करते, या तो ये बहुत कॉस्टली है, मतलब बहुत बेल्स एंड विसल्स है इसमें। तो उसके लिए आप एक यूज़र सेंट्रिक या अपने कंट्री सेंट्रिक सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हो यूजिंग आईओटी। आप सिमिलरली जैसे अगर होम ऑटोमेशन में देख रहे हैं, जैसे मैंने वाटर लेवल में बताया कि आप वाटर कंजम्पशन आपका मॉनिटर कर सकते हो, वैसे ही होम ऑटोमेशन में आप आपका पावर कंजम्पशन मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ अगर लाइट लेवल सेंसर आप यूज़ करें, तो अभी आपके रूम में कितने लूमेंस है डे लाइट में,
या शाम के टाइम में कितने लुमेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एक अगर सिक्वेंशियल एलईडी है आपके पास जो कंटिन्यूस लाइट एमिशन उसका हम वेरी कर सकते हैं। तो अभी अगर बहुत सी लाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर अगर जितनी लाइट चाहिए उसकी 50% अगर नेचुरली अवेलेबल है तो हम 50% ही लाइट जलाएं। 50% लाइट इसके कारण आपकी बच जाएगी, और जैसे जैसे लाइट लेवल कम कम होती जाएगी नेचुरल लाइट, वैसे आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करना बढ़ा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हो आपके प्रॉब्लम सेट में सोल्यूशन के लिए। अरे वॉज आई ऑडिबल नीरज? यस भैया। हाँ हाँ हाँ, मैं भैया। कब से डिस्कनेक्ट हुआ था? वॉज आई ऑडिबल? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, हाँ भैया। जस्ट रिसेंटली हाँ हुआ था ना, ये ऐसा नहीं तो मैं इतना सब बात किया भाई। हाँ भैया, नहीं सर। जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो स्टेप्स याद करो वर्कशॉप 3 में क्या क्या करना था। ठीक है, तो मैंने जैसे कृष्ण प्रिया दीदी ने आपको बताया होगा, तो ब्लिंक हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट इस क्वेश्चन में भी आपको ब्लिंक यूज़ करना है। तो चलो पहले ब्लिंक पे चलते हैं। ब्लिंक पे मैंने दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया। दिख रही है मेरी स्क्रीन? इस पे ठीक है, तो ये मैंने डिवाइस बनाया है। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मेट तो वही है कि टेम्पलेट पे जाओ, एक नया टेम्पलेट क्रिएट करो, उसको सेव करो एज ए डिवाइस, यहाँ जाओ न्यू डिवाइस पे क्लिक करो। तो ये मैंने डिवाइस क्रिएट किया है। तो डेटा से यहाँ दिखा दो। तो ये 3 बटन्स है। ठीक है, तो एक मैंने लाइट का बटन दिया, उसका देखो डेटा टाइप इंटीजर है, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। तो बस बटन दिया है मैंने, ऑन या तो ऑफ, ये 2 स्टेट्स बताएगा। ये एक फैन बटन है, तो फैन बटन के लिए मैंने 2 स्टेट दिए, या तो ऑन या तो ऑफ। और एक मैंने फैन स्पीड कंट्रोल दिया, तो उसके लिए मैंने 5 वैल्यूज़ दिए, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 स्पीड्स बताएगा फ़ैन के। ये मैंने खोल, ठीक है, तो ये मेरे 3 बटन्स है। तो नेक्स्ट स्टेप था मुझे प्रोटीज पे जाके मेरा डिवाइस बनाना था, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो चलो, तो जिनको याद आ रहा है, जैसे ये कॉम्पिम है, ये येलो कलर का एलईडी, और ये है मोटर ड्राइवर। ठीक है, तो ये बस ये मोटर का मैंने क्योंकि स्पीड वेरी कर रहा हूँ मैं, तो वो एक ड्राइवर होता है। अगर आप स्पीड वेरी नहीं कर रहे, बस मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो बस ये मोटर यूज़ करो और इसके 2 टर्मिनल्स आप कनेक्ट करो। ये सारा एक मेरा आर्डिनो बोर्ड है, तो आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया। तो पहला क्या, आप लिंक पे जाके डिवाइस बना लिया। ठीक है, ये हो गया। तो एक प्रोटीएस पे सेकंड स्टेप था कि प्रोटीएस पे डिवाइस आप कनेक्शन कर लेने। ठीक है, कर लिया कनेक्शन। अब थर्ड स्टेप था कि आपको आर्डिनो कोड भी लिखना है इस आर्डिनो के लिए, वो कर लेते हैं। कि मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। हाँ, उससे पहले एक मैं देख लूँ कि मैंने, देखिए ये आपको ये पता होगा कि टिल्डा साइन क्या डिनोट करता है। मैंने वर्कशॉप 1 में ही आपको बताया था, ये PWM पिन्स है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। तो ये एनालॉग, ये इसमें जो आउटपुट पिन्स है वो सब डिजिटल पिन्स है। ठीक है, तो आप अगर आपको जैसे
इसमें एनालॉग आउटपुट सिमुलेट करना था, ये जो मोटर ड्राइवर है तो उसको ज़रूरत है कि एनालॉग आउटपुट चाहिए था उसको। उसके लिए अगर एनालॉग आउटपुट सिमुलेट करना है तो आपको PWM पिंस जो ऑलरेडी इनेबल्ड है वही आपको एनालॉग आउटपुट दे पाएंगे, तो वही आपको यूज़ करना है। ये था आर्डुइनो कोड। उसके लिए तो ये जो है ब्लिंक मेरा टेम्पलेट आईडी, टेम्पलेट नेम और ऑथराइजेशन टोकन, तो मैंने ये यहाँ से कॉपी किया था। डिवाइस इन्फो में ये तीनों देख रहे हैं कंपोनेंट्स, ये मैंने कॉपी कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने पेस्ट कर लिया, यहाँ लिखा होता है कि ऑलरेडी टेम्पलेट आईडी यहाँ आपको पेस्ट करना है, तो यही आपको पेस्ट करना है। ये कोड भी कहाँ से मिला था, मैंने वही जो एग्जाम्पल कोड होता है, फाइल एग्जाम्पल लिंक मोड्स USB सीरियल आर्डिनो सीरियल USB, ये वाला कोड ही इंपोर्ट किया था मैंने और इसे मैं एडिट किया है आगे जाके। देख लीजिए ये लास्ट वाला पार्ट सेम है प्रॉपर सेटअप से वाले तक, ये वाला पार्ट सेम ही है। बस मैंने ये पिन मोड डिक्लेयर कर दिए 10 11 9, देख सकते हैं मैं 10 11 और 9 ये तीन पिन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने डिनोट कर दिया। तो उस वाले कोड में एग्जांपल कोड में मैंने LED ब्लिंकिंग वाला कोड एक्सप्लेन किया था, तो उसमें बस हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया था, तो उसके लिए बस हमने एक कोड लिखा था, ये वाला कोड। और इस वाले कोड में बस हमने बस वो वेरिएबल वी नॉट का डॉट पैराम डॉट एजेंट इज इक्वल टू ये LED का वेरिएबल लिया था, LED किया था शायद यह, और वो LED वेरिएबल यूज़ करके हमने LED लाइट अप किया था, ये सेम इसी मोड में, ठीक है। तो यही बस 9 नंबर का पिन है और इस डिजिटल लाइट 9 कॉमा LED स्विच, अगर LED स्विच की वैल्यू 0 है तो 9 नंबर पे आउटपुट 0 आएगा और मेरा LED नहीं चलेगा। अगर LED स्विच की वैल्यू 1 है तो 9 नंबर पे 1 मतलब हाई आउटपुट जाएगा, और ये इसका आर्डिनो के टर्म्स में हाई का मतलब होता है +5 वोल्ट, तो वो +5 वोल्ट जाएगा उस पॉइंट पे और मेरा LED लाइट करेगा। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए, फैन स्विच और फैन स्पीड। फैन स्विच मेरा ये वाला स्विच का पोजीशन बताएगा, फैन बटन ये वाला स्विच का पोजीशन बताएगा, और फैन स्पीड मेरा फैन का स्पीड की वैल्यू देगा। तो V1 था मेरा फैन स्विच, तो V1 ये वाले कोड पार्ट से मैंने फैन स्विच की वैल्यू ले ली। ठीक है, तो फैन स्विच में आइदर 0 आएगा या तो 1 आएगा, डिपेंडिंग मैंने स्विच ये ऑन करके रखा है। और V2 वेरिएबल से मैंने फ़ैन की स्पीड की वैल्यू ले ली, फ़ैन स्पीड। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा फ़ैन स्विच ऑन है, तो अगर फ़ैन स्विच ऑन है तो ही मैं स्पीड चेंज करने का ट्राई करूँगा। अगर फ़ैन स्विच ऑफ है तो कोई मतलब ही नहीं होता स्पीड चेंज करने का। तो अगर फ़ैन स्विच ऑन है, इफ फ़ैन स्विच, तो अगर फ़ैन स्विच की वैल्यू 1 होगी तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने अगर फ़ैन स्पीड 1 है तो एनालॉग राइट 10, ये वाला उसका फॉर्मेट था, ये मैंने नेट से गूगल नेट से देखा था। आपको डीसी मोटर आपको आर्डिनो में कैसे कंट्रोल करनी है, मिल जाएगा। अगर स्पीड वेरी करना था तो ये जो एनालॉग राइट 10 ये पिन नंबर है और ये इसकी वैल्यू है। अगर ये डिजिटल पिन होती या तो हम यहाँ लो लिखते, या तो हाई लिखते, या तो 0 या तो 1 लिखते, लेकिन क्योंकि एनालॉग पिन है तो इसमें आउटपुट हम 0 से 255 तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्पीड 1 पे आउटपुट दिया 20, स्पीड 2 पे दिया 40, स्पीड 3 पे दिया 70, स्पीड 4 पे दिया 100, स्पीड 5 पे दिया 150। ये डिफरेंट मैंने स्पीड सेट की। और ये 10 नंबर पिन मतलब एक साइड वो जो पिन है, ये जो 10 नंबर है IN2 और आउट2, तो एक साइड पे आउटपुट देना होता है, एक साइड पे 0 देना होता है, ये उसका फॉर्मेट होता है, ये डीसी मोटर कंट्रोल करने के लिए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इसका आवाज़ आ रही है, इसको डाउट है कोई? म्यूट है कोई तो? सुनंदा मैया, ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो PWM पिन यूज़ किया इसलिए मैंने एनालॉग राइट लिखा है। अगर मुझे सिंपल डिजिटल आउटपुट दिया तो मैं यहाँ डिजिटल राइट दिखता है, जैसे जैसे ये लाइट स्विच वाले में लिखा है, मैंने क्या लिखा, डिजिटल राइट लिखा। और अगर एनालॉग आउटपुट देता था इसलिए मैंने एनालॉग राइट लिखा। सेम रीड वाले में भी होता है, एनालॉग रीड रहता है, मोस्टली सब सेंसर का डाटा एनालॉग फॉर्मेट रहता है, तो हम एनालॉग रीड यूज़ कर सकते हैं जब हमको इनपुट रीड करना है। देख सकते हैं आप मेरे इनपुट पिंस खाली है सब।
हाँ नहीं, ठीक है, तो कोड हो गया मेरा। ये देख सकते हैं आप, सीरियल बिगिन 9600, ये बॉड रेट होता है। तो ये 9600 हमको सब जगह अपडेट करना है, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ करना है। तो मैंने कोड रन कर दिया। ये मैं बोल रहा था, ये है ना, ये अपलोड बटन होता है। अगर आप यूएसबी से आपका आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट किया है हमने आपके लैपटॉप को, तो ये एक बार कंपाइल होने के बाद आपको ये कोड, ये बटन प्रेस करना है, तो आपके बोर्ड पे कोड अपलोड हो जाएगा। फिर आप बोर्ड इंडिपेंडेंटली या तो बैटरी से पावर करो या तो डीसी अडेप्टर से पावर करो, लैपटॉप से टेस्ट करने कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आपने एज लॉन्ग एज आपने कोड अपलोड कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हेक्स फाइल का लिंक है, ये मुझे कॉपी करना है सिमुलेशन पर्पज़ के लिए, और इस पर डबल क्लिक करना है, या तो राइट क्लिक करो, डबल क्लिक करो, सेम सेम, और ओके करना है। और मैंने जैसे बताया था कि ये जो कॉम्पिम है, इसमें हमको एक यहाँ आपको बॉड रेट अपडेट करना है, फिजिकल बॉड रेट, वर्चुअल बॉड रेट, दोनों आपको अपने 9600 रखें। और इसका फिजिकल पोर्ट है COM1, और जो हम रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से, लिंक से, उसका फिजिकल पोर्ट है COM2। वो मैंने सेट कर लिया। आप कोई भी पोर्ट यूज कर, COM2 जैसे शायद ये ऑप्शन रहते हैं, COM2, COM5, COM3, COM4, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपने कौन सा COM पोर्ट सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये पोर्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन ये पोर्ट मैंने अभी तक सिमुलेट नहीं किया। तो मैं वर्चुअल सीरियल पोर्ट एमुलेटर यूज़ करूँगा, और उससे मैं सिमुलेट करूँगा। ये VSP, ये मैं रन करूँगा एक बार। ये कॉमन ऑलरेडी लोडेड है, तो मैं और एक कॉम कनेक्टर को करना है स्पॉन। COM2, ठीक है, तो इसके बाद मुझे एक सीरियल रिडायरेक्टर लेना है। सीरियल रिडायरेक्टर मतलब आप एक केबल समझ लो, एक वर्चुअल केबल है जो दोनों कॉम पोर्ट को कनेक्ट कर रही है। दोनों कॉम पोर्ट कौन से, एक कॉम पोर्ट है मेरा प्रोटीएस वाला कॉम पिन, दूसरा कॉम पोर्ट COM2 है मेरा ऑनलाइन ब्लिंक वाला सर्वर। थोड़ा वेट करते हैं। तो मैंने बॉर्डर सेट नहीं किया था, इसलिए मैं एक बार और करता हूँ। ठीक है, आपको सेटिंग्स में जाना है, स्पीड आपको सेट कर देना 9600 दोनों साइड्स। ठीक है, तो ये आपके पोर्ट एमुलेट हो गए। तो ये पोर्ट क्या होता है, ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, जब आप प्लेसमेंट की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पोर्ट्स क्या होता है। तो फिलहाल हमने पोर्ट असाइन कर दिया है। ये अपना प्रोटियस है पोर्ट 1, नौ ऑनलाइन ब्लिंक सर्वर है COM2, ये है COM1। ठीक है, तो ये पोर्ट बस हमने असाइन कर लिया है, अभी तक ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। तो वो कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट रन करना है। वो स्क्रिप्ट कहाँ होता है ये भी बता देता हूँ। ये आपको जाना है माई डॉक्यूमेंट्स में। माई डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी एक आर्डिनो नाम का फोल्डर तैयार हुआ होगा, तो आर्डिनो को पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है लाइब्रेरीज़ में, फिर आप ये ब्लिंक में जाना है, क्योंकि हम ब्लिंक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। जैसे बताया था वर्कशॉप 3 में, पहले आर्डिनो में आपकी ब्लिंक लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी वर्कशॉप 3 में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है ब्लिंक लाइब्रेरी। तो आपको स्क्रिप्ट्स में जाना है, और ये ब्लिंक सीरियल, ये वाला जो विंडोज़ बैच फाइल है, ये आपको रन करना है। लेकिन रन करने से पहले कुछ मेजर एडिट करना था इसमें, आपको बोल देता हूँ मैं एक बार।
ठीक है, तो मैंने com2 सेट किया है क्योंकि मेरा ऑनलाइन वाला जो वर्जन है वो com2 है, ब्लिंक com2 है। फिर मैंने बॉर्डर एक सेट किया है। ये सर्वर पोर्ट में 8080 जो एक सेट करना था, और एक सर्वर एड्रेस ब्लिंक डॉट क्लाउड ये एक सेट करना था। ये एक जगह एक सेटिंग करनी थी आपको, और एक नीचे ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसमें भी आपको चेंजेस कर लेने थे टू बी श्योर। ये 3 लाइंस, ये com2 9600 ब्लिंक डॉट क्लाउड और 8080, ये 4 लाइंस आपको चेंज करनी थी, और इसको आपको सेव करना है। फाइल से सेव करिए, यूज़ करना है। और अभी इसको डबल क्लिक करके रन करना है, ये विंडोज टर्मिनल में रन होगा। रन हो रहा है शायद। DSR इज ऑन, मतलब आपका स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपको वेबसाइट पे जाओ, देखो आपका डिवाइस यहाँ टैग ऑनलाइन दिखा रहा है कि नहीं। तो ये अभी तक ऑफलाइन ही दिखा रहा है क्योंकि एक स्टेप आपका बाकी है। ये सब स्टेप्स हो गए। लास्ट स्टेप होता है आपको सिमुलेशन एक बार यहाँ से रन करना है। जब तक ये रन नहीं करेंगे आप लोग, तो आप लोग आपका लाइव नहीं होगा सिमुलेशन। सिमुलेशन रन कर दिए, देखिए आप कॉम्पे में ये रिलीज लाइट अप हो गया, ग्रीन और रेड। आपका डिवाइस स्टेटस भी इमीडिएटली ऑनलाइन दिखा रहा है। तो ताकि आपको पता चले कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक साइड बाय साइड ट्राई करता हूँ रन करने का। एलईडी और रिमोट है, दोनों पे फोकस कर देता हूँ। जैसे देखिए लाइट बटन ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो रहा है। ऑफ कर रहा हूँ, लाइट ऑफ हो रही है। फैन में बटन में ऑन कर रहा हूँ, स्पीड सेट किया मैंने 4 की स्पीड पे फैन ऑन हो गया। बटन में ऑफ कर रहा हूँ, फैन ऑफ हो जाएगा। जैसे स्पीड में चेंज कर रहा हूँ, फैन का स्पीड बढ़ रहा है। तो ये था सॉल्यूशन मेरे पिछले वर्कशॉप के प्रॉब्लम का। तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया है जेन्युइनली। स्पीड वाला पार्ट आई थिंक मोस्ट लोग नहीं कर पाए थे सिमुलेट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फैन ऑन ऑफ किया था तो भी मोर देन इनफ था। कुछ लोगों को वो DSR वाला प्रॉब्लम आया था कि DSR इज ऑफ, तो भी एक बार स्टेप वाइज चेक कर लीजिए। अगर आप करेक्टली कर रहे हैं, सब स्टेप फॉलो किए हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। तो अभी लास्ट पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, 10 बज गए ऑलरेडी। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, डाउट्स है कोई PS के रिगार्डिंग बैच डाउट है, फाइल का एक बार कॉम्पिटिशन। एडिट, बैच फाइल में एडिट एक बार बताइए, वो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, लेकिन अभी बता देता हूँ। मैं सब सेम ही किया था, पर तब भी वो मेरा वही आ रहा था एरर बार बार। अच्छा, बैच फाइल तुमने वर्चुअल सीरियल बोर्ड पे भी पोर्ट बनाए थे प्रॉपर, जो यूज़ हाँ किए हैं भैया, तुमने? हाँ भैया, और सेम पोर्ट्स तुमने प्रोटीएस में भी, कॉम्पेम पे तुमने सेम पोर्ट एडिट कर किया था? जैसे हाँ यहाँ भैया अगर, वही किया था। तो शायद तुमको ये बैच फाइल मैंने सेंड भी किया होगा व्हाट्सएप पे। हाँ वो आपने किया था। किया था ना? हाँ उसको भी एडिट किया था उसी हिसाब से, पर तब भी नहीं हो रहा था वो।
अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, कल मैं तुम्हें एक मीट में बुलाऊंगा, ठीक है, साथ में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पीसी मैंने नहीं देखा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 जगह पे है, एक कॉम पोर्ट एडिट करना है, बॉर्ड रेट एडिट करना है, सर्वर एड्रेस एडिट करना है, सर्वर पोर्ट एडिट करना है, और नीचे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, ये भी एडिट कर दें, ये नहीं किया तो भी चलेंगे क्योंकि अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी आप एडिट कर लो यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछ लो कॉन्टेस्ट के रिलेटेड, अपने इवेंट के रिलेटेड। चलो मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ, ये अभी वाला पार्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है।